Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So this is Mahendra Jakulwar and welcome to my YouTube channel. And if it is your first time to visit my channel, then please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. So dear friends, in this video we are going to start the very first chapter of science of 9th standard from Maharashtra State Board syllabus. As well as this topic is also common for NCERT syllabus of 9th standard. And that chapter is motion. So dear friends, how can we define the motion? The motion is defined as if an object changes position with respect to any fixed point. That fixed point is also called as reference point. Okay. If any body changes position with respect to any fixed point, then that body is said to be in motion. अगर कोई बॉडी एक फिक्स पॉइंट के रेफरेंस में उसकी पोजीशन चेंज कर रही है तो वो बॉडी मोशन में होती है. फॉर एग्जाम्पल द मूविंग बस, द मूविंग फैन, इन सभी केसेस में क्या हो रहा है, उस बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक फिक्स पॉइंट. सो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ मोशन. द अनदर कंसेप्ट इज दैट इज रेस्ट, विच इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द मोशन. ओके, what is motion then? If the body continuously changes position with respect to a fixed point, or that fixed point is also called as a reference point, then that body is said to be in motion. And if the body is not changing its position with respect to any fixed point or any reference point, then that body is said to be at rest. There are so many examples of rest bodies. For example, a book kept on the table, a chalk in my hand, now it is at rest, it is not moving. Therefore, we can define the rest, the concept of rest like this. If the body is not changing its position with respect to its surrounding or with respect to any fixed point, then that body is said to be at rest. So this is the one of important concept in the chapter motion, that is distance and displacement. So there is a simple definition of distance. The actual path covered by the object is called as distance. The actual path covered by the object or actual path traveled by the object is called as distance. Whereas displacement is defined as the minimum shortest distance between initial point and final point of the object. अगर कोई बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रही है तो उस समय उसने जो एक्चुअल पाथ कवर किया है उस पाथ को बोलेंगे हम डिस्टेंस. और उन दोनों पॉइंट्स में का, मान लो कि बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रही है, तो उस दो पॉइंट में का जो मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब आएगा? स्ट्रेट लाइन में. अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव हो रही है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करेगी. ओके, so the minimum shortest distance is called as displacement and the actual path covered by the object is called as the distance. So is it clear what is meant by distance and what is meant by displacement? The distance means the actual path traveled by the object from one point to another point is called as distance, and the minimum shortest distance between initial point and final point of the object is called as displacement. The distance is denoted by letter S. Distance is denoted by letter small s, whereas a displacement is denoted by letter D. Displacement को हम किससे डिनोट करते हैं? Displacement is denoted by letter small d. Okay. The SI unit for distance is meter and SI unit for displacement is also meter. And the CGS unit for distance is what? CGS क्या होगा? CGS unit of distance, that is centimeter. Very simple. Okay. और ऐसे ही इसका CGS unit क्या आएगा displacement का? That is also centimeter. So
Here the distance is denoted by letter S, displacement is denoted by letter D, and SI unit for distance is meter and SI unit for displacement also meter. The CGS unit for distance and displacement is centimeter. For example, if an object is at point A, okay, this is point A, and the object is moved to point C, like this, okay, ऑब्जेक्ट ए पे है और वो कहां पे जा रहा है, सी पॉइंट पे जा रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट ए से सी पॉइंट पे ऐसे सीधा नहीं जा रहा है, पहले ऑब्जेक्ट ए से जाएगा बी पॉइंट तक. फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, देन द ऑब्जेक्ट इज मूव टू द पॉइंट सी, एंड सपोज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इज, this is 4 meter, and the distance between the point B and C is 3 meter. Okay, then according to definition, what is the distance? The actual path traveled by the object, the actual path. Here body is moving from A to B, then B to C. This is the actual path traveled by the object. So what will be the distance here then? Distance is equal to, what is that, AB plus BC. AB is equal to 4 meter and BC is equal to 3 meter. So what is the total distance here? The total distance will become 4 plus 3 is equal to 7 meter. Here the object travel 7 meter distance. Object कितना distance travel करेगा? 7 meter का distance travel करेगा. लेकिन इस केस में displacement कितना है? बॉडी का displacement कितना है? जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम नहीं होते, ठीक है, हमेशा सेम नहीं होते, मैं बोल रहा हूं हमेशा सेम नहीं होते हैं, ठीक है. बॉडी ए से सी तक जब जा रही है, इट इज मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, देन बी टू सी. इन दिस केस द ए बी डिस्टेंस इज 4 मीटर, बीसी डिस्टेंस इज 3 meter, the total distance is equal to 7 meter, and according to definition, what is the distance? The actual path traveled by the object is called as distance. Therefore यहाँ पे distance कितना हुआ, 7 meter. लेकिन displacement क्या है? Displacement is the minimum shortest distance between initial point and final point. यहाँ पे body कहाँ पे थी initially? Point A पे. कहाँ पे जा रही है, कहाँ पे reach हो रही है finally? C पे. So A is the initial point and C is the final point. So A और C पे का मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना है हमको. मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब आएगा? जब हम स्ट्रेट लाइन निकालेंगे. यहां से अगर स्ट्रेट लाइन निकालते हैं तो उन दोनों में का मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा. ओके, सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस देन? टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, लेट अस कंसीडर हियर द एंगल बिटवीन दैट इज AB एंड BC इज 90 डिग्री. अगर 90 डिग्री है, वो जो ऑब्जेक्ट है वो एक्जैक्टली 90 डिग्री से मुड़ गया है, तो ऐसे केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू AC रहेगा. AC, व्हाई डिस्प्लेसमेंट AC क्यों लेते हैं हम? क्योंकि ये पॉइंट A और C में का मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. सो हाउ वी कैन कैलकुलेट? यहाँ पे तो डिस्टेंस 7 मीटर आया है. सो हाउ वी कैन कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट? द डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए हियर AB is equal to 4 meter and BC is equal to 3 meter, and we have to find the AC, that is the displacement of the object. To find the displacement, we simply use the Pythagoras theorem in this right angle triangle. That is, in triangle ABC, so what happened? We use Pythagoras theorem. Then by Pythagoras theorem is equal to what? AC square is equal to AB square plus BC square. So AB is equal to what? 4 meter plus BC is equal to 3 meter square. So 4 square 16 plus 3 square is 9. So 16 plus 9 is equal to what? Is 25. 25 is equal to AC square. Therefore AC is equal to अंडर रूट 25. 25 का स्क्वायर रूट कितना आता है? 25 का स्क्वायर रूट आता है 5. Therefore AC is equal to 5 meter. In this case, the body is first moving from A to B, then B to C. Therefore 4 plus 3 is equal to 7 meter is what? The distance. 7 meter is the distance.
एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज AC सिंपल, हमको AC फाइंड आउट करना था, इसलिए हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करके इसको पाइथागोरस थ्योरम यूज किया और यहाँ पे हमारा मिल रहा है AC इज इक्वल टू 5 मीटर। ओके, इस पे से हमको ये समझ में आता है डिस्टेंस बड़ा है किससे? डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि डिस्टेंस में हमने क्या लिया है? एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, बट इन डिस्प्लेसमेंट we take the minimum shortest distance between the initial point and the final point of the object. So this is the difference between distance and displacement. Okay, distance and displacement. One more thing, the distance is the scalar quantity. Distance is what? Scalar quantity, and whereas displacement is vector quantity. Displacement is what? Vector quantity. Means the distance doesn't have directions, it has magnitude only. Okay, it doesn't have any direction, उसको कोई डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों भी होते हैं, इसलिए डिस्टेंस जो है वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। और दूसरा एग्जांपल कंसीडर करते हैं टू अंडरस्टैंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। लेट अस कंसीडर वन मोर एग्जांपल। सो हियर the body is moving in a circular path. बॉडी कैसे मूव हो रही है? सर्कुलर पाथ में। हाँ, एंड आफ्टर वन रोटेशन, सॉरी आफ्टर वन कंप्लीट रोटेशन व्हाट हैपन? द डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका? डिस्टेंस एस से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस एस इज इक्वल टू, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, और क्या आता है ये? 2πr। लेकिन यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? डिस्प्लेसमेंट एक रोटेशन पूरा करने के बाद बॉडी ए पॉइंट पे इनिशियली थी, वो एक रोटेशन करने के बाद कहां पे जाएगी? फिर से ए पॉइंट पे जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। यहाँ पे इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट भी ए है, तो इन दोनों में का डिस्टेंस क्या आएगा? दैट इज 0। सो इन दिस केस डिस्टेंस कितना आएगा आपका? 2πr आएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट d इज इक्वल टू क्या है? 0 है। सो दिस इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मोशन। ओके, एक्चुअली मोशन के कई अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, और सर्कुलर मोशन, लीनियर मोशन। ओके, अब लीनियर मोशन के भी फिर से दो टाइप है, रेक्टिलिनियर मोशन एंड कर्विलिनियर मोशन। ओके, रेक्टिलिनियर मोशन में क्या होता है? स्ट्रेट लाइन में बॉडी जाएगी, और कर्विलिनियर मोशन में द बॉडी इज मूविंग अलोंग द कर्व्ड पाथ, राइट? So these are the different types of motion. Okay, the linear motion, circular motion, oscillatory motion. Okay, there are so many types of motion, but in this chapter we are going to learn about the basic types of motion, that is uniform motion and non-uniform motion. What is that? Uniform motion and non-uniform motion. So let us see what is meant by uniform motion. Uniform motion. Uniform motion. Okay, the uniform motion means what? If the body travels equal distance in equal interval of time, that is called as uniform motion. अगर बॉडी इक्वल टाइम में, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो उसको बोलेंगे हम यूनिफॉर्म मोशन। इफ द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, that is called as uniform motion. Whereas if the body is not covered equal distance in equal interval of time, is called as non-uniform motion. Or if the body covers unequal distance in equal interval of time, that is called as non-uniform motion. We will draw the distance versus time graph for uniform motion. Here we will take time and here is the distance. हम डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ निकालेंगे किसका? यूनिफॉर्म मोशन का। तो मान लो कि इनिशियली टाइम 0 है, तो डिस्टेंस भी 0 होगा। अब हम 5 मिनट्स का टाइम लेंगे, 5 मिनट्स, देन उसके बाद में आएगा 10 मिनट्स, उसके बाद में 15 मिनट्स एंड 20 मिनट्स ऑन। ओके, और यहाँ पे डिस्टेंस, इनिशियली द टाइम वाज 0, द डिस्टेंस इज आल्सो 0। ओके,
देयरफॉर 0 से 5 मिनट्स तक यानी 5 मिनट में ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, मान लो कि यहाँ पे 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। उसके बाद में फिर से 5 मिनट में 20 मीटर, देन 30 मीटर एंड 40 मीटर, लाइक दिस। ओके, इफ यू ड्रॉ, हियर व्हाट हैपेंड, द ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हर 5 मिनट में ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ओके, जैसे 0 से 5 तक के कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसने, 10 मीटर। फिर 5 से 10 यानी और 5 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 20 माइनस 20 इज इक्वल टू अगेन 10 मीटर। फिर अगेन इन 5 मिनट्स द ऑब्जेक्ट ट्रैवल द डिस्टेंस दैट इज 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10 मीटर। हियर द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। अगर हम इसका टाइम वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ निकालेंगे, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं टाइम और वाई एक्सिस पे लेंगे हम डिस्टेंस। ओके, हाँ, टाइम इनिशियली 0, फिर ये 5, 10, 15, 20, so on. Okay, here on the y-axis we will take the distance, that is 10 meter, 20 meter, 30 meter, 40 meter, and so on. Okay, so if you plot the graph of distance time by using this data, then initially the time is 0, therefore distance is also 0. For when the time become 5 minutes, डिस्टेंस कितना हो जाएगा उसका, 10 मीटर। फिर से 10 मिनट्स में इसका डिस्टेंस कितना हो रहा है, 20। 15 मिनट्स में इसका डिस्टेंस हो रहा है 30। 20 मिनट्स में इसका डिस्टेंस हो रहा है 40। अगर हम इसका ग्राफ निकालते हैं, देन यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। द ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म मोशन के लिए अगर हम ग्राफ निकालते हैं तो वो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन। क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। दिस स्ट्रेट लाइन इंडिकेट्स व्हाट, द ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, सो दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। नाउ लेट अस सी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अभी हम देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। We can define the non-uniform motion as if an object travels unequal distance in equal interval of time, then the object is said to be in non-uniform motion. अगर ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल में, अर्लियर केस में क्या देखा था हमने, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। बट हियर द ऑब्जेक्ट इज not covering equal distance in equal interval of time, means the object travels unequal distance in equal interval of time. So such type of a motion is called as non-uniform motion. Again, let us consider the time and distance. Here the time will take and distance. Initially when the time is 0, then the distance is also 0. अब हम 5 मिनट का टाइम लेंगे, जैसे पहले के एग्जांपल में लिया था। ओके, मान लो कि पहले 5 मिनट में ऑब्जेक्ट जो है वो 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। नेक्स्ट 5 मिनट में ऑब्जेक्ट जो है वो भी 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो 10 प्लस 5 इज इक्वल कितना हो जाएगा, 15। नेक्स्ट 5 मिनट्स में वो फिर से 5 मिनट डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, दैट विल इज इक्वल टू 20। ओके, उसके 5 मिनट के बाद वो कितना, फिर से 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो यहां पे हो जाएगा 30। इफ वी प्लॉट द डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, देन यू विल नॉट गेट द स्ट्रेट लाइन। अगर हमने डिस्टेंस और टाइम ग्राफ निकाला किसके लिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, तो हमको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता है। सो लेट अस सी, हियर इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। हमेशा एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे हम, टाइम लेंगे, यहाँ पे इन मिनट्स। ओके, इन वाई एक्सिस विल टेक डिस्टेंस इन मीटर। ओके, व्हेन द टाइम इज 0, टाइम 0, इधर भी टाइम लेंगे 5, 10, 15, 20 और इधर लेंगे हम डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस इज इक्वल टू
पहला when the time is 0 then distance is also 0. when time become 5 minutes 5 मिनट के बाद डिस्टेंस कितना आ रहा है, तो यहाँ पे 10 यहाँ पे आएगा. ओके, फिर उसके बाद फिर से जब टाइम 10 हो रहा है तो डिस्टेंस कितना हो रहा है, दैट विल बिकम 10 को ये 15 हो रहा है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में आएगा. ओके, फिर 15 मिनट्स को डिस्टेंस कितना हो रहा है 15. फॉर 15 मिनट्स द डिस्टेंस इज बिकमिंग 20, यहाँ पे 20 आ रहा है. फिर उसके बाद 20 मिनट्स के लिए डिस्टेंस कितना है, फॉर 20 मिनट्स द डिस्टेंस इज 30 मीटर. 20 मिनट्स के लिए डिस्टेंस कितना आएगा. एंड इफ यू सी, अगर हम इसका ग्राफ निकालते हैं तो क्या ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिल रहा है हमको, नहीं. मीन्स फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज नॉट स्ट्रेट लाइन, not a straight line. Okay, for uniform motion the distance time graph is straight line always. uniform motion के लिए distance time graph कैसा आएगा, straight line आएगा. ओके, यहाँ पे अगर हमने डिस्टेंस लिया, इधर टाइम लिया, तो ये स्ट्रेट लाइन आता है. लेकिन यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन. दिस मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. यहाँ पे टाइम इंटरवल तो हमने सेम लिया 5, 10, 15. ओके, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा है. सो सच टाइप ऑफ ए मोशन इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. सो नेक्स्ट टॉपिक इज speed and velocity. What is meant by speed? The distance traveled by the object in given time. One more time. The distance traveled by the object in given time is called as speed. Given time में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसको क्या बोलेंगे हम, स्पीड. Therefore, speed can be defined as speed is equal to, क्या आएगा इक्वेशन हमारा, distance traveled divided by time taken. Distance traveled divided by time taken. This is the equation for the speed. Okay, and we know that speed is denoted by letter v and distance is denoted by letter s and time is denoted by t. Therefore, the formula for speed is v is equal to s by t. That is, speed is equal to distance traveled in given time or distance traveled divided by time taken. This is called as speed. Okay, from this equation we know that the SI unit for distance is what, meter, and SI unit for time is second. Therefore, the SI unit for speed is meter per second, and whereas CGS unit for speed is centimeter per second. स्पीड का SI यूनिट क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड, और CGS यूनिट आएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड. जनरली सभी मोशन जो है हमारे डे टू डे लाइफ में हम वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं होते. आपको पता होगा कि हम बहुत सारे मोशंस देखते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, जैसे मोशन ऑफ ए बस, मोशन ऑफ ए ट्रेन, मोशन ऑफ ए फैन, करेक्ट, मोशन ऑफ ए प्लैनेट्स. ओके, ये पूरी मोशन जो है इसमें से कुछ मोशन जो है वो यूनिफॉर्म मोशन होते हैं और कुछ नॉन यूनिफॉर्म मोशन होते हैं. और जो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. ओके, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, बॉडी जो है या फिर ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करता है. सो जनरली मोस्ट ऑफ द मोशंस इन आवर डे टू डे लाइफ और नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो उस समय में बॉडी जो है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करेगा, वो पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा पर्टिकुलर टाइम में. सो फॉर दैट वी यूज द न्यू कंसेप्ट दैट इज एवरेज स्पीड. ओके, एवरेज स्पीड मीन्स व्हाट, द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. So let us see the simple example to understand the average speed. Let us consider the body is moving from point A to B and covers 6 meter distance in 5 seconds. Then body move from point B to C, covers 5 meter distance in 3 seconds, and finally body reaches to from point C to D, travels 3 meter distance in 2 seconds. So in सभी cases में बॉडी जो है वो उसका टाइम
और डिस्टेंस ये जो है डिफरेंट है. सो सच टाइप ऑफ ए मोशन इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. सो फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन वी यूज द टर्म दैट इज एवरेज स्पीड. उसका अगर हमको स्पीड निकालना है तो हम सिंपली डिस्टेंस अपॉन टाइम नहीं लेंगे, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एवरेज स्पीड. सो इन दिस एग्जाम्पल व्हाट इज एवरेज स्पीड देन? v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल. यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना है? पहले केस में बॉडी 6 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, उसके बाद में 5 मीटर, देन फाइनली बॉडी कवर्स 3 मीटर डिस्टेंस. सो द टोटल टाइम टेकन इज दैट इज 5 प्लस 3 प्लस 2 सेकेंड. ओके, सो 5 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 14 divided by total time taken is 5 plus 3 is equal to 8 plus 2 divided by 10 second. Okay, so what will be the average speed then? That is 1.4 meter per second. This is the average speed of the object. Okay, so I hope you understand. So why we take the average speed? हमारे डे टू डे लाइफ में जितने भी मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं होते हैं, या फिर मोस्ट ऑफ द मोशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होते हैं. ऐसे केसेस में क्या होता है कि जनरली हम देखते हैं कि हम कभी बस से ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, बस पहले कुछ 50 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल करेगा, अगर फिर रास्ता ठीक ठाक नहीं है तो फिर वो 40 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल करेगा. तो ऐसे केसेस में हम फाइनली एक डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे. इन दैट केस हम ऐसे बोलेंगे कि हम पहले घंटे में 40 के स्पीड से आए थे, फिर उसके बाद में फिर दूसरे घंटे में हम 30 के स्पीड से आए थे. सो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? एवरेज स्पीड बताते हैं. एवरेज स्पीड यानी टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया हम और उसको कितना टाइम लग रहा है, राइट? उसको कितना टाइम लग रहा है, तो वो होता है एवरेज स्पीड. तो हम जनरली ऐसे बोलते हैं कि हम 50 किलोमीटर पर आवर से आए थे. इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर घंटे में 50 किलोमीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल किया है. इट इज नॉट पॉसिबल. ओके, so this is the concept of average speed. Average speed के बाद में हम देखेंगे velocity. What is meant by velocity? जैसे हमने speed का definition देखा था, velocity का definition भी same आएगा, but the difference is that the velocity is defined as velocity is equal to आएगा displacement divided by time is called as velocity. Okay. What is the basic difference in speed and velocity? स्पीड को डायरेक्शन नहीं होता और वेलोसिटी को डायरेक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिया है? डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट को हमको डायरेक्शन बताना पड़ता है कि बॉडी पहले कहाँ पे थी, फिर उसके बाद में कहाँ पे गई, इस डायरेक्शन में गई. ओके, सो the velocity is equal to displacement upon time. Velocity is also denoted by letter v, therefore displacement is denoted by letter d and time by t. Therefore the mathematical formula for velocity will become v is equal to d by t. क्या फॉर्मूला आएगा वेलोसिटी का? d by t. Okay, and the SI unit for velocity is same that of speed, that is मीटर पर सेकेंड, और इसका सीजीएस यूनिट भी सेम आएगा. जो स्पीड का सीजीएस यूनिट था वही वेलोसिटी का सीजीएस यूनिट रहेगा, दैट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड. स्पीड को डायरेक्शन नहीं होती. जब हम स्पीड बताते हैं तो हम डायरेक्शन नहीं बताते हैं, लेकिन वेलोसिटी जब हम बोलते हैं तो वहां पे डायरेक्शन बताना जरूरी होता है. सो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आएगा? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2. We know that initial velocity is denoted by letter u and final velocity is denoted by letter v divided by 2. Average velocity is equal to initial velocity plus final velocity divided by 2. Okay, so what is the equation for average velocity? Average velocity is equal to initial velocity plus final velocity divided by 2. So our next topic is effect of speed and direction on velocity. स्पीड और डायरेक्शन का, बॉडी का स्पीड और उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन, इसका वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट होता है? जैसे हमको पता है, अगर हमने वेलोसिटी, पहले हम देखते हैं स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है. जैसे हमने ऑलरेडी स्टडी किया है इसके बारे में. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. अगर बॉडी का स्पीड चेंज होता है या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है
तो उसका वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट होता है. देयर आर 3 इफेक्ट्स ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी. फर्स्ट केस इज if the speed of the body is constant but the direction is changing, then the velocity of that body will be changed. अगर स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो बॉडी का वेलोसिटी चेंज होगा. दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट. द सेकेंड इसमें क्या होगा, इसका एग्जैक्टली रिवर्स होगा. अगर बॉडी का स्पीड चेंज हो रहा है लेकिन डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम, ओके, डायरेक्शन सेम. अगर बॉडी सेम डायरेक्शन में जा रही है, फॉर एग्जांपल साउथ टू नॉर्थ जा रही है, लेकिन उसका स्पीड चेंज हो रहा है. उसका स्पीड कैसे हो रहा है, चेंज हो रहा है, बदल रहा है. तो ऐसे केस में बॉडी का वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होगा. राइट. द फर्स्ट केस इज इफ द स्पीड इज कांस्टेंट एंड द डायरेक्शन इज चेंजिंग, देन आल्सो द वेलोसिटी विल बी चेंज. सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, बॉडी का स्पीड बढ़ रहा है लेकिन बॉडी सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो ऐसे केस में भी बॉडी का वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाता है. एंड द थर्ड केस है अगर बॉडी का स्पीड और डायरेक्शन दोनों भी चेंज होते हैं, बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन चेंजिंग. Both speed and direction changes. At that time what happen? The velocity of the body also changes. So these are the 3 effects of speed and direction on velocity. The first is अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड से जा रही है लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो उसका वेलोसिटी बदल जाएगा. राइट. फॉर एग्जांपल जैसे मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, कांस्टेंट स्पीड से मून घूम रहा है लेकिन उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. सेकंड केस है स्पीड चेंज हो रहा है. पहले इसमें स्पीड सेम था, डायरेक्शन चेंज हो रहा था. अब सेकंड केस में क्या हो रहा है, स्पीड चेंज हो रहा है लेकिन डायरेक्शन सेम है. जैसे हम मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से जा रहा है लेकिन हम स्पीड बढ़ा रहे हैं हमारा. राइट. कभी स्पीड कम हो रहा है, कभी स्पीड ज्यादा हो रहा है, तो ऐसे केसेस में भी वेलोसिटी क्या होता है, चेंज होता है. एंड द फाइनल इज बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन चेंजेस, देन आल्सो वेलोसिटी चेंजेस. राइट. अगर बॉडी का स्पीड चेंज हो रहा है, उसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, तो बॉडी का वेलोसिटी भी चेंज होगा. सो दीज आर द 3 इफेक्ट्स ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ बॉडी ऑन इट्स वेलोसिटी. Next topic is acceleration. So acceleration is defined as the rate of change of velocity. Rate of change of velocity is known as acceleration. या फिर acceleration का जो simple अगर हम mathematical formula निकालते हैं तो acceleration is equal to what? The change in velocity. The change in velocity divided by time is called as acceleration. Acceleration is called as change in velocity divided by time. For example, the body is moving with initial velocity u. अगर body initial velocity u से move हो रही है, u is what? Initial velocity, and उसकी velocity बढ़ के increase होके कितना हो गया है, v हो गया है. The final velocity of the body is v. V is the final velocity. Then according to the definition or according to this formula, what is that? Acceleration is equal to change in velocity divided by time. और इसका change in velocity क्या आएगा? Therefore acceleration a is equal to change in velocity, that is final velocity minus initial velocity. अब change in velocity कैसे निकालेंगे हम? फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को अगर माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? चेंज इन वेलोसिटी. ओके. Therefore, acceleration a is equal to change in velocity, that is final velocity minus initial velocity divided by time or divided by t. Therefore, the acceleration a is equal to v minus u by t. This is the simple formula for acceleration. Therefore, the SI unit for acceleration is meter per second square, right? And CGS unit क्या है इसका? CGS unit for acceleration is centimeter per second square. Centimeter per second square.
उसके बाद में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के टाइप्स देखेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। कितने टाइप होता है एक्सेलरेशन के? 3 टाइप्स। नंबर 1 इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नंबर 2 इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, एंड थर्ड वन इज जीरो एक्सेलरेशन। थर्ड होता है जीरो एक्सेलरेशन। ओके, व्हाट इज मीन बाय पॉजिटिव एक्सेलरेशन? पॉजिटिव एक्सेलरेशन किसको बोलेंगे हम? इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज इंक्रीजिंग, देन द एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। वन मोर टाइम, if the velocity of the body increasing, then the acceleration is called as positive acceleration. अगर बॉडी की वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते जाती है तो ऐसे केस में उस एक्सेलरेशन को बोलेंगे हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन इज, नेगेटिव एक्सेलरेशन किसको बोलेंगे? इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज डिक्रीजिंग, देन द एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इफ द एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन द सेम डायरेक्शन, देन ऑल्सो उस बॉडी को, देन ऑल्सो द एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी इज कॉल्ड एज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इफ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज अपोजिट, देन द बॉडी इज सेड टू बी हैव नेगेटिव एक्सेलरेशन, उस बॉडी को नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। एंड व्हाट इज जीरो एक्सेलरेशन? इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज नॉट चेंजिंग, अगर बॉडी का वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम जीरो एक्सेलरेशन। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू व्हाट? एक्सेलरेशन। अब जीरो एक्सेलरेशन कब होगा? उसका अगर उसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। मान लो कि उसका इनिशियली वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड था, फाइनल वेलोसिटी भी क्या रहेगा? 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। तो ऐसे केस में 10 माइनस 10 इज इक्वल टू क्या आएगा? जीरो। जीरो अपॉन एनी क्वांटिटी इज इक्वल टू अगेन जीरो, देयरफॉर उसका एक्सेलरेशन क्या आएगा? जीरो। द रिमेनिंग चैप्टर विल सी इन नेक्स्ट वीडियो, राइट? If you like this video, then please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon so that you will get notification of new videos. Bye bye.